ओके सो हेलो एवरीवन, वी आर लाइव अगेन। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हम मैम को ऐड नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज नॉट एबल टू ऐड मैम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैम हमको रिक्वेस्ट भेजेंगी एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेशन नाउ। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टिल दैट टाइम अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है विच यू वांट टू आस्क टू हर, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू इनकलकेट देम इन द कॉन्वर्जेशन। ओके, hello ma'am. Hello. Hello, everyone. How are you ma'am? I'm good. I'm sorry for the inconvenience. I was not able to add you. So sorry for That's not that. an issue, and I would apologize for the delay. I got a last minute VC call at 7 o'clock today. Could not join at 8 Okay. o'clock. तो अभी क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके हैं, so I would like to start with the introduction with your prior permission. So Sure, shall sure. we start? That's done. Okay. So there's a little bit introduction, just thoda sa. Okay. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Hello everyone. Namaste, respected ma'am, and all the viewers watching us right now. My name is Rashi Rusia, and I am feeling very glad and blessed to interact with you right now, and it's such an opportunity for me. And I, on behalf of MPPSC Club, welcome you to this live session. Thank you, Prachi. Rashi. Okay. So ma'am, actually I have decided that this live session will go in 3 phases. The first phase will be the normal questions which we have for mains examination. Secondly, जो chat में questions आएंगे, we'll try to take them. And thirdly, ending में I have a quick game for you, so we can enjoy as well. Okay. Okay? Okay. So first of all, मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, how is this corona period going on? Because you know the situations are very bad, and आपको अपनी ड्यूटी भी करनी है, and at the same time you have to take precautionary measures that you know you don't get affected by that. So how is this going on? Is this a challenge, or how are you dealing with it? This has been a challenge for the administrative machinery because this was something that has never been seen before. It was something very Right, ma'am. unprecedented for all the departments, revenue, police, medical staff. Nobody was prepared as such for such a situation. So it has been challenging, and the challenges have been multifold. On one hand, we also have to impose the lockdown. On the other hand, we also have to see that the migrant laborers get their rations and the transportation of the laborers. That there are multiple things that we have to juggle between. So this has been challenging, but I think in the long run, it has prepared the entire government machinery to be prepared for such situations in the future as well. Right. This is something which is a takeaway for us for the future, right? This is We what have to see the my silver question lining. is. There's no other Right, option. right, exactly. मैम पहले तो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि राइट नाउ देर इज कोरोना, देन वी हैव गिवन द एग्जामिनेशन इन जनवरी, राइट? उसके बाद काफ़ी डिले हो चुका है फॉर रिजल्ट एंड फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज। तो कहीं ना कहीं जो एस्पायरेंट्स हैं वो एक डिलेमा में है कि व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, एंड जो पढ़ाई से भी टच है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं। सो व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू वांट टू से कि हम लोग मोटिवेटेड रहें एंड एट द सेम टाइम हम लोग अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन ये जो सिनेरियो है उसमें इनकलकेट हो जाए? देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन सिर्फ हमारी स्पेसिफिक नहीं है। राइट, पूरी दुनिया इस चीज से कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इम्पैक्ट हो रही है। आज की डेट में अगर आप अपने घर पे बैठे हुए हो, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव वाटर टू ड्रिंक, यू आर एक्चुअली मतलब लिविंग इन अ गुड वे, because there are laborers who have lost their livelihood, who have lost their homes. People have even lost their loved ones to the disease. But we should see it in the broader light कि अगर हमारा एग्जाम हम नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ हम नहीं है जो सफर कर रहे हैं. The whole world is impacted by this. So our problems are very minuscule compared to the larger problems at hand which other people might be facing.
तो ये पीरियड को आप एक लंबा पीरियड समझिए कि आपको तैयारी करने का और टाइम मिल रहा है। और अगर राइट आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है, राइट। और इनफैक्ट एग्जैक्टली मैम। यूपीएससी जैसे एग्जाम जो कभी भी डिले नहीं हुआ था वो तक पोस्टपोन हुआ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी एमपीपीएससी भी ट्रैक पर आएगा। और एग्जाम जब भी होगा हमें तब उसके लिए अच्छे से तैयार रहना है। और अभी मुझे लगता है एक चीज, मतलब हमें अगर सिल्वर लाइनिंग देखनी है तो एक चीज ये अच्छी है कि आप अभी बहुत ही कैजुअल मोड में, एक लाइट हेडेड मैनर में आप तैयारी कर सकते हो, जहां आपको 12 घंटे पढ़ने की रोज जरूरत नहीं है। आप रोज 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ो, बाकी टाइम अपनी हॉबीज को भी दो, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को भी, ओवर कॉल और वीडियो कॉल, dedicate that time and study in a light-hearted manner rather than being very pressurized. Take it as that opportunity. Okay, this is something which is a very great advice and we surely needed that because कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसमोटिवेशन हो जाता है या कहीं ना कहीं डिलेमा हो जाता है कि ओके एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, वी डोंट नो व्हेन विल इट हैपन, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, बट दैट वाज श्योरली अ वेरी गुड एडवाइस. ओके सो मैम अब मेरे पास कुछ मेंस के क्वेश्चन है एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द मेंस क्वेश्चन, सो शैल वी स्टार्ट विद दैट? Sure, sure. ओके मैम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, बिकॉज यू नो यू आर रैंक 1 एंड रैंक 1 सब कुछ डिस्क्राइब कर देता है, द बेस्ट इन एजुकेशन, द बेस्ट इन आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग, राइट? सो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी. जैसे सपोज हम सोचे कि 3 महीने बाद हमारा पेपर है या 4 महीने बाद हमारा पेपर है, सो अभी हम क्या करें? आपने जैसे कैसे किया था कि आप डिवाइड कर लेते थे जीएस पेपर्स को कि सपोज मैं 2 घंटे के स्लॉट में ये पढ़ रही हूँ, 2 घंटे में ये पढ़ रही हूँ, या यू वर लाइक कि एक बार पूरा जीएस पेपर एक खत्म कर लिया एंड देन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? और अगर आप अभी यहाँ होते करंट सिचुएशन में, सो आप कैसे इस चीज को फेस कर रहे होते या व्हाट वाज, मतलब आप कैसे प्रिपेयर कर रहे होते अभी के सिनेरियो में? राशि, एक चीज तो मैं करेक्ट करना चाहूंगी, रैंक 1 इज नॉट द बेस्ट इन एवरीथिंग, राइट। जितने जितने लोग सिलेक्ट होते हैं 19-20 का अंतर होता है ना। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो रैंक 1 आ जाता है, राइट। किसी की नहीं रहती है तो रैंक 27 आ जाता है, राइट। लेकिन everybody is more or less having the same caliber and understanding and answer writing, everything is almost the same, ठीक है। तो सेकेंड थिंग, मेरी स्ट्रैटेजी, आई यूज टू स्टडी ऑलवेज सब्जेक्ट वाइज। कि जैसे एक बार पहले पॉलिटी उठाया, एक हाथ में सिलेबस है, एक हाथ में मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, लक्ष्मीकांत है, राइट। तो पहले जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट वाला टॉपिक है, सो पार्लियामेंट मैंने अपने नोट्स में जो भी है, पहले मैंने अपने नोट्स पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, इतना पढ़ लिया मैंने। इसको सपोज मैंने एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट दे दिया था कि आई विल फिनिश पॉलिटी इन 10 days. So 10 days used to be dedicated to just polity along with daily newspaper reading and current affairs. मैं दूसरा सब्जेक्ट उसमें मिक्स नहीं करती थी, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी पढ़ने की। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं कि मोनोटनी ना बनी रहे, बट मेरे लिए ये रहता था। और इसके साथ में अगर कोई टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की, मेंस की, तो आई यूज टू गिव टाइम टू दैट ऑल्सो, राइट। तो आई यूज टू गो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ओके मैम जैसे आपने जीएस पेपर 2 को मेंशन किया, जीएस पेपर 2 का अगर हम पार्ट बी की बात करें, सो इट इज़ वेरी एनालिटिकल. इसमें सिर्फ फैक्ट्स जो है वो नेसेसरी नहीं है, बट आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी रिटन इन द आंसर्स, राइट? तो अब उसमें काफ़ी सारे, बिकॉज अभी कोचिंग्स नहीं है, अगेन वी डोंट हैव प्रॉपर रिसोर्सेज, सो व्हाट इज दैट वन थिंग वी कैन डू? इंटरनेट तो है ही, बट इंटरनेट इज, see what I feel ma'am is internet is a little time consuming. It takes me like the entire day to cover one syllabus. Like education, I'll cover the entire syllabus in a day, so that is something which becomes monotonous. So what are we supposed to do for that? और हमारी अप्रोच क्या हो सकती है जीएस पेपर 2 पार्ट बी के लिए स्पेशली? फर्स्ट ऑफ ऑल राशि, क्या ऑडियो क्लियर है? क्योंकि मुझे भी थोड़ा एको आ रहा है। और ओके आप मैम मुझे आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, मेरे को कमेंट्स में भी मैम हमें दिख रहा है कि पीपल आर टेलिंग मी टू यूज ईयरफोन्स आई गेस, should I use? I'll just मैम हमें आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है. आ रही है? So we'll ask people. Okay, Are okay, we okay. audible? So we can see the comments.
आर वी ऑडिबल? अगर हम ऑडिबल एको है। एको है। ओके, आई जस्ट यूज द ईयरफोन, यस मैम, ईयरफोन में श्योर। भी रह। पीपल आर टेलिंग यू कि आप ईयरफोन्स पहन लीजिए। स्टार्ट करिए। अभी भी एको आ रहा है क्या? मैम हमें आपकी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है। इंस्टेड जब आप ईयरफोन्स पहनी थी तब थोड़ा सा लाउड हो गया था, बट अभी इट्स परफेक्ट फॉर अस आई गेस। अभी अगर भी आप लोग जो व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग हमें देख सकते हैं एंड प्रॉपरली सुन सकते हैं, आर वी ऑडिबल? तो प्लीज एक हाई या समथिंग लाइक दैट, येस और नो लिख दीजिए, सो वील गेट टू नो रिगार्डिंग दैट। अभी सही है हेलो, 1 ऐसा 2 बोल रहे 3 हैं, इज द एको? हाँ, नो एको नाउ। ठीक है, चल है ना? लेट्स स्टार्ट। अभी परफेक्ट है। राशि, व्हाट वाज योर तो क्वेश्चन? शुड आई आस्क? हाँ हाँ, ओके मैम। मैम मेरा जो क्वेश्चन था वो जीएस पेपर 2 पार्ट बी से था, बिकॉज इवन आई एम फेसिंग हाँ, अ ओके लॉट ओके ऑफ ओके प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। तो उसकी अप्रोच क्या हो सकती है? या बिकॉज सी मैम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। जैसे सपोज इफ आई एम स्टडिंग आई स्टडीड एजुकेशन टुडे, द एंटायर डे गॉट लाइक वेस्ट, आई वोंट से वेस्ट बट यूटिलाइज हो गया था वो एजुकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने में। So that becomes monotonous and boring sometimes for people. So what can be the solution for that? See, it was something that was not available in the books for me also, है ना? हेल्थ वाला Right. पोर्शन था, डॉक्टर्स का माइग्रेशन, Hmm. उनकी जो लेस अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज, एजुकेशन, डिफरेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो एज सच पक्का पक्का है किसी भी बुक में नहीं मिलता है कि हमें लाइन से पूरा Right. सिलेबस मिल जाता पेपर 2 पार्ट बी का। सो आपको कितना ही टाइम लगे, लेकिन यूज आपको इंटरनेट ही करना पड़ेगा। Okay. हमारे पास क्योंकि और ऑल्टरनेटिव नहीं है। हो सकता है कोई टॉपिक किसी बुक में मिल जाए, किसी बुक में आपको एनसीईआरटी, एनयूपीए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाए, किसी बुक में आपको डब्ल्यूटीओ, एचआरडी, ये सारा मिल जाए, लेकिन एक कंपाइलेशन Right. आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सेकंड पेपर इज एनालिटिकल। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंटरनेट पे ही सर्च करने पड़ेंगे, भले ही कितना टाइम लगे। और Okay. सेकेंड चीज, आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो रहेगा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसमें जो सोशल इश्यूज वाला सेगमेंट रहता है, मतलब मंथली मैगजीन में 7-8 उसके सेगमेंट्स होते हैं, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज, Right. एडुकेशन, आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारा। तो उसमें जो सोशल इश्यूज वाला सेगमेंट है, ये आप पिछले कुछ महीनों का उठा के देखिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन भी डील करते हुए मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और ये सब मिल जाएगा। सो फॉर एनालिसिस, वे अहेड, चैलेंजेस, प्रोज, कॉन्स, यू शुड गो विद द विजन आईएएस मंथली मैगजीन। फ्री ऑफ कॉस्ट विजन आईएएस की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, और आईएएस Yes, एस्पिरेंट ma'am. यूज करते हैं। सो यू शुड गो विद दैट। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। Okay, मैम। फाइन मैम। मैम जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है, वो ऐसे के बारे में है। सी मैम, बीइंग फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम या जैसा भी है, ऐसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके ऐसे में मार्क्स अच्छे हैं तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मेंस आंसर राइटिंग पोर्शन, राइट? तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को छोड़ के ऐसे के लिए जो वोकैबुलरी होनी चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है, वो जैसे क्लिष्ट होनी चाहिए या नॉर्मल हिंदी भी लिखेंगे तो इट विल बी गुड इनफ? इधर मतलब सिर्फ टर्म्स जो है वो हम अच्छे से मेंशन करें वो कैब में, बाकी जो हिंदी है अगर हम नॉर्मल हिंदी लिखेंगे तो दैट विल बी गुड इनफ और नॉट?
देखो, अगर आपको नॉर्मल हिंदी आती है नॉर्मल कोर्स में, तो आप उसको जबरदस्ती क्लिष्ट बनाने की कोशिश मत करिए, है ना? राइट। इट विल सीम ओके। लाइक एन अननेसेसरी डेस्परेट अटेम्प्ट कि कहीं कोई राइट। वर्ड नहीं भी अगर यूज होना चाहिए, आप जबरदस्ती कि मेरी हिंदी क्लिष्ट साउंड करे तो मैं उसको एंटर कर दूं, तो वो काफी डेस्परेट सा लगता है कि अननेसेसरी इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन या बहुत ही विद्वान का एक इम्प्रेशन जताना चाह रहा है कैंडिडेट। तो जो भी आपके नेचुरल फ्लो में आ रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी भी नहीं है, तो इट शुड बी मतलब एक एवरेज हिंदी भी रहे जो समझ में आए। सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होना चाहिए, भाषा की गलतियां नहीं होनी राइट। चाहिए, है ना? तो वो चीज पर ध्यान रखो, सब्जेक्ट मैटर ठीक हो। डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन या अंडर द फोर्स या प्रेशर की बहुत ही विचित्र शब्द, किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्द कुछ आपको ये उसमें तो डालने हैं, समझ ही नहीं आता एक्चुअली। है ना? सो राइट। shouldn't be trying very hard for that. Whatever comes naturally, do that. Second thing, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे का पेपर देखिए 100 मार्क्स का है, और उसमें जो मैक्सिमम भी जाते हैं से 65, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा, ठीक है? और जो मिनिमम जाते हैं सपोज 40, सॉरी 45, राइट। तो 45 से 60 के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम में सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का अंतर है, मतलब सॉरी 45 और 65 में सिर्फ 20 मार्क्स का अंतर है। राइट। और फिर अधिकांश लोगों के इसके बीच में होते हैं, किसी के 55, किसी के 58, किसी के 52, राइट, 50s की लाइन में। तो हार्डली डिफरेंस आता है 7-8 नंबर, ठीक है? तो 7-8 यस मैम। नंबर के लिए यू शुडंट वॉक डाउन योर ब्रेन कि कैसे करना है, कैसे करना है। डिसेंट 10 एक ऐसे आप पढ़ लो, प्रतियोगिता दर्पण में जो आते हैं हिंदी वाली, वो पढ़ लो, घटना चक्र 2-4 ऐसे पढ़ लो, 2-4 कोटेशंस तैयार कर लो, हर टाइप के सब टॉपिक से, जैसे इन्वायरमेंट के, सोशल इश्यूज से, वुमेन का, चाइल्ड का, बूढ़े लोगों का, और इंडियन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक, इस टाइप के 5-10 कैटेगरी के ऐसे पढ़ लो, पढ़ के चले जाओ, जो समझ में आए अच्छे से लिख दो बस, दैट शुड डू इट, राइट? मतलब मैम क्या आप ओके मैम। मैम क्या आपने ऐसे किया था कि जैसे ऐसे हैं तो जैसे आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, आपने क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऐसे के लिए, मतलब डिड यू डू दैट कि मैंने वो पढ़ लिया? आई मेड अ लिस्ट ऑफ कोटेशंस ओके। हिंदी में, Right. कोटेशन का, कि जैसे अगर इंडिया हाँ. पे कुछ आता है तो मेरे पास एक हाँ. इंडिया के लिए एक कोटेशन रहे, एक Right. वुमेन से रिलेटेड रहे, एक शिक्षा से रिलेटेड रहे, कोट्स हो गए, कविताएं हो गई 2-2 लाइन की। अगर खुद बना सकते हो कोई कविता या कहानी, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर किसी को लिखने का शौक है, 2 लाइन की Right. बना दो कुछ, राइट, टॉपिक से पर्टिनेंट। तो आई जस्ट प्रिपेयर्ड सम कोट्स, सम स्टैटिस्टिक्स Okay. यू कैन टेक, मतलब एक लिस्ट बना सकते हो स्टैट्स का कि कहीं आया तो ये डेटा डाल सकते हैं, ये वो। बाकी जस्ट गो थ्रू सम एसेज इन द मैगजीन्स एंड यू आर कूल। ओके मैम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स से 2 क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। फर्स्ट वन बीइंग केस स्टडीज। केस स्टडीज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेटेज रखती है, तो अब केस स्टडीज मैम डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मॉरल्स, राइट? तो व्हाट इज दैट वन थिंग जो अगर आप केस स्टडी में इनकलकेट करोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट, या व्हाट शुड बी द वे ऑफ सॉल्विंग अ केस स्टडी, एग्जैक्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ केस स्टडी? Rashi, do you have a case study right now? Do you have it? No ma'am, but I can search it on Google if you will allow me to. Tell me one case study. Meanwhile, I'll tell the general thing. See, case study में आपको क्या करना चाहिए, जितने possible cases हैं, आपको एक बच्चा किसी दुकान में काम करता हुआ दिखा, और तो आप क्या कदम उठाएंगे, ठीक है? तो इसमें आपके कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे वो बच्चा मिला, पहले तो मैं ये वेरीफाई करूंगी क्या वो बच्चा 14 साल से नीचे है या 14 साल से ऊपर है, राइट? राइट, एज वेरिफिकेशन। आप सिर्फ उसको ऐसे देख के नहीं बता सकते हो। तो केस 1, इफ द चाइल्ड इज बिलो 14 ईयर्स, तो फिर आपका एक्शन क्या रहेगा, ठीक है? केस 2, इफ द चाइल्ड इज अबव 14 ईयर्स, तो फिर तो कोई एक्शन लेना ही नहीं है, राइट? हाँ। केस 3, इज ही वर्किंग इन द, if he is below 14 years, is he working in his school time, school hours, है ना? राइट। से 4 के बीच में क्या ये बच्चा काम कर रहा है, ठीक है? राइट।
तो अगर स्कूल आवर्स में काम कर रहा है तो अगेन आरटीई के तहत भी एक वायलेशन है ना। राइट। हाँ। दूसरा, क्या ये अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, या फिर हम्म। द फोर्थ है कि क्या ये अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है। तो फैमिली उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिली बिजनेस में हाँ। अगर नॉन हैजार्डस है तो देयर इज नो इशू, एज लॉन्ग एज ही राइट। इज वर्किंग आफ्टर हिज स्कूल आवर्स, है ना। राइट। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, क्या ये किसी हैजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कुछ कुछ ओके। हैजार्ड, कुछ ये, है ना। तो ये 4-5 केसेस, आप जितने पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, आपको कुछ भी एक अज्यूम करके आगे नहीं बढ़ना, आपको एज मेनी सिनेरियोज यू कैन इमेजिन उतने केस बनाने हैं। केस 1 दिस, केस 2 दिस, और उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे छोटी छोटी सब हेडिंग ओके। केस करने हैं, ठीक है। तो दूसरा, हम्म। एथिक्स का सिलेबस होता है जहां पे आप पढ़ते हो कि टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, जहां पे राइट। मॉरलिटी, ऑनेस्टी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ऑनेस्टी। राइट। ह्यूमैनिटी, राइट। ये सारे जो क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज आपको दिमाग में छपे होने चाहिए कि क्या क्या क्वालिटीज मैंने पढ़ी हैं। इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन पार्टिजनशिप, है ना। तो फिर जब आपसे ये पूछते हैं कि इस केस में आपके पास कौन से मॉरल डिलेमाज हैं, तो आपको सारे मॉरल मॉरल पहले तो क्वालिटीज पता होनी चाहिए। जब आपको क्वालिटीज Right. पता है तब तो आप इक्वेट कर सकते हो डिलेमा किस चीज में हो रहा Point. है ना। हाँ। कि Right. ऑनेस्टी वर्सेस आपका ह्यूमैनिटी, है ना। हम्म। वर्सेस काइंडनेस, कि अगर आप Right. किसी को रिपोर्ट कर दिया जो भले ही बहुत बड़ा क्राइम नहीं था, क्या उसके अगेन हम्म। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उसको अपने फैमिली में, उसमें। बाद में। हाँ। ये Right. डिलेमा Right. है। हमें डिलेमा तो लिखने हैं, उसका सोल्यूशन हम क्या निकाल रहे हैं दैट इज डिफरेंट, है ना। हम ऑनेस्टी और काइंडनेस में चूज क्या कर रहे हैं कि हमारा कॉल है, लेकिन यू हैव टू लिस्ट इट एज वन ऑफ द डिलेमास, राइट। हम्म। और चॉइस हमेशा आपको कानून के साथ करनी है। Okay. व्हाट द लॉ So, सेज, यू हैव टू गो बाय दैट, है ना। okay. मतलब एक, क्योंकि Right. लॉ, जैसे आपने लिख दिया कि बच्चा 14 साल से छोटा था और स्कूल आवर्स में काम कर रहा था, तो आप ये नहीं बोलोगे कि चलो जाने देते हैं, है ना, जस्ट आउट ऑफ काइंडनेस या सिंपैथी। आप ये हम्म। करोगे कि आई विल टेल इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, एंड मतलब दैट शुड बी योर कॉल। मतलब आपको तो यही करना है ना। फिर अथॉरिटीज क्या करती है ये उनका उनका डिसीजन है, यू आर नो बट डिसाइड, है ना। तो फिर एंड Right. रिक्वेस्ट टू डू दिस या डिस्कस इट विद देम, एंड स्पॉन्सर द चाइल्ड्स एजुकेशन, कुछ ऐसा इनोवेटिव वो निकालिए सोल्यूशन, है ना। सो बेसिकली एक्सट्रैक्ट ये था कि जब आप केस स्टडी को पढ़ो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट डाउन ऑल द केसेस जो भी पॉसिबल हैं, देन जो मॉरल्स है या एथिक्स है वो सबको डिकोड कीजिए या डिपेंडिंग ऑन लिखिए। द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द राइट। क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन उसको लिखिए एंड लास्ट में आप क्रिएटिव वे फॉरवर्ड टाइप पर लिख सकते हैं एंड यू कैन एंड इट। राइट। ओके मैम, सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि आपका रूटीन क्या था जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। So many people have asked this. 2-3 people have asked this question. Repetitive question है ये। तो क्या रूटीन था आपका? मेरा रूटीन, देखो, मेरा रूटीन ये रहता था कि जब तक खाना, सोना और रोज के काम हटा दो तो एवरी टाइम आई यूज टू जस्ट स्टडी, है ना। Okay. तो आई यूज टू वेक अप से अराउंड 9 or 10 in the morning, and 1 hour was dedicated to newspaper reading. सबसे पहले उठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके बाद फिर जो भी उस दिन का सब्जेक्ट था वो दिन का सब्जेक्ट उठाती थी, ठीक है। मतलब से 2 घंटा उसको पढ़ लिया। फिर उसके बाद आई यूज टू टेक अ बाथ, हैव लंच एंड एवरीथिंग, देन से अराउंड 1 o'clock आई यूज टू सिट अगेन फॉर से 2 hours और समथिंग, है ना। और उसके बाद I very vaguely remember my schedule. Then तो बेसिक एक्सट्रैक्ट ये था कि आप पढ़ते काफी थे एक्सक्लूडिंग द नॉर्मल टाइम, हाँ है ना? हाँ, मतलब people want to know ना स्लॉट्स क्या रहते थे और ये वो। हाँ, बिकॉज एग्जैक्ट स्लॉट। I used to study till late at night, 2 बजे तक, Okay. बजे तक, and I used to be a late riser. बस सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को टाइम सूट करता है ना। So whatever floats your boat, बट मेरा ऐसा रहता था। और उस दौरान पे मैंने बहुत सारी चीजें अवॉइड भी की हैं जितना पॉसिबल हो सकता था। पार्टीज या फिर आपका टीवी सीरीज
that was the major distraction that was avoided. So, and it was difficult to avoid because everybody used to discuss just those in college and all. Right. तो बट आई सेड कि नहीं नहीं, अभी नहीं देखना है तो नहीं देखना है, क्योंकि एक बार लत लग जाती है तो फिर रोज 2-4 एपिसोड तो देखना ही है. तो आई डिड नॉट वॉच वन टीवी सीरीज इन कॉलेज, नॉट वन. सो दैट ये तो बहुत, मतलब यू डिडंट वॉच टीवी एट ऑल टाइप का हो गया ये तो. टीवी में देखती थी, टीवी जो दिख जाए. टीवी वॉच सीरीज, But ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. I was not fond of watching TV. Okay. तो टीवी चलते फिरते जो दिख जाए, बट टीवी सीरीज का एडिक्शन हो जाता है ना. सो आई वॉच दैट. मैम, पीपल आर आस्किंग मी दैट एथिक्स की जो केस स्टडीज हैं उसमें कुछ वर्ड लिमिट है क्या, बिकॉज दे आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. या ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ. ये वर्ड लिमिट रहती, देख लेना एक बार नोटिफिकेशन और उसमें है ना. आई हैव रिटन द वर्ड लिमिट. ओके. बट जो भी रहती है आपका आंसर उतने में आ जाता है ना. यू हैव टू अकोमोडेट इन दैट. ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन आई हैव फॉर यू. वो ये है कि मैम, जैसे कि वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टन अबाउट कि कोचिंग्स कब खुलेंगे एंड ऑल. तो इफ देयर आर पीपल जिन्होंने मेंस का सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है एंड दे वांट कि वो आंसर राइटिंग शुरू करें, तो हाउ टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर एट होम, या कैसे टाइमर लगाना चाहिए, स्टॉप वॉच और समथिंग लाइक दैट? Right now, don't go for answer writing, I would say. First, whosoever is there, first they should finish their syllabus. Answer writing should be done, according to me, the period between prelims and mains is enough to brush up your answer writing skills. तो आप अभी से एकदम मतलब तैयारी शुरू ही कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट खत्म भी नहीं हुआ है और आप सोचो आंसर राइटिंग कर दो, वैसा मत करो. आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट खत्म कर लीजिए. जब पॉलिटी खत्म किया तो उसके दौरान या उसके बाद आप पॉलिटी के आंसर राइटिंग करिए, है ना. डोंट रश आंसर राइटिंग. इट कैन इजीली बी डन इवन आफ्टर प्रीलिम्स. ओके मैम, लेक्सिकन के लिए क्वेश्चन है कि लेक्सिकन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक लगती है लोगों को, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. तो क्या उसको कवर बाय कवर या पेज बाय पेज पढ़ना है, या जो हमारे एथिक्स में जो सिलेबस है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो. लेक्सिकन में नहीं भी मिल रहा है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, किसी और बुक से कर लो. बहुत ही बेसिक डेफिनेशन और बेसिक चीजें हैं, आपको वैसे भी बन जाएंगी, मतलब किसी और भी सोर्स से. ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर्स के लिए. मैम, 3 मार्कर्स कभी कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं. सपोज वी हैव रेड, मतलब हम पढ़ के गए हैं जितना, बट सम ऑफ द 3 मार्कर्स आर लाइक आउट ऑफ द ब्लू बॉक्स. तो उसको फिर छोड़ना इज अ कंडीशन, या उसको जो भी मन में आ रहा है जस्ट राइट दैट एंड लीव इट? जो भी मन में आ रहा है, अनरिलेटेड तो मत लिखो, लेकिन अगर रिलेटेड वो दूर से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रेलेवेंट है, कुछ तो लिख दो 1-2 पॉइंट्स, कोई हार्म नहीं है उसमें. लेकिन बिल्कुल ही नहीं पता है तो डोंट अटेम्प्ट इट. इट्स मतलब इट वोंट बोड वेल. पीपल आर आस्किंग अस इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? हिमांशु इज आस्किंग अस कि आपकी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी क्या थी? इकोनॉमिक्स में मैंने एनसीईआरटी 11th क्लास, जो 11th और 12th, वो मेन बुक्स है मेरे लिए, है ना. तो रिलेटेड आता था, कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता था. एक वो और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यही सोच रहता था मेरा इकोनॉमी का. तो ओके मैम, स्ट्रैटेजी उसमें था. ओके मैम, एक और चीज है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर, बट दिस इज माय क्वेश्चन, आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस. मैम, काफी एस्पायरेंट्स होते हैं जो एक बार मेंस दे चुके हैं, दे हैव गिवन द मेंस वंस और ट्वाइस, बट जो फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बता सकते हैं क्या, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर जो हॉल में होता है, या व्हाट आर द थिंग्स यू हैव नोटिस्ड? एक और है उसके बाद, ये वाले के बाद एक और है, सॉरी. देखो, एटमॉस्फेयर की बात करें तो as we reach the, देखो, एक तो सुबह there is a, मतलब when you are at your home, there is a pit in your stomach that you can feel, right? है ना. मतलब there is some, मतलब it might not be fear, but it is something that you do not know that we always get before an exam. तो वो चीज एक रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा पेट को में कुछ ना कुछ डाल के जाओ, मतलब मठा पी लिया,
यू नो, या दूध पी लिया, चाय और कुछ खा लिया, बिस्किट्स, मतलब have something in your, put something in your tummy, right? That is important when you are inside the exam hall. तो एक डर सा रहता है, फिर आप जब एग्जाम हॉल पहुंचते हो, सभी जन उसी मोड में रहते हैं, कोई कोई मतलब कोई किसी से बात बात नहीं करता है, सब अपना कमरा ढूंढते हैं, एग्जाम हॉल नंबर ढूंढते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, राइट? हम्म। एंड यू शुडंट इवन टॉक टू मेनी पीपल, बिकॉज सबकी तैयारी का लेवल अलग अलग होता है। किसी ने कुछ पढ़ा होगा, आपको वो बोल देगा ये पढ़ा है, तो वो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो, हाँ। है ना? एंड डोंट ट्राई टू रिकॉल मेनी थिंग्स कि क्या ये याद है मुझे, क्या ये याद है, डोंट। जब अगर रिकॉल करने का समय आएगा तब आ जाएगी आपको याद, है ना? मतलब अगर एग्जाम में आने वाला होगा वो क्वेश्चन, आप 15 मिनट बाद देख ही लोगे, वैसे भी 15 मिनट बाद आपको रिकॉल करना ही, हम्म। आप वहां बैठे बैठे रिकॉल करोगे तो आप नर्वस होते हो। तो माइंड को ब्लैंक रखिए। इफ यू वांट, जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड इमेजिन नथिंग। मेडिटेशन वाला जो फेज होता है ना, जस्ट कीप योर माइंड हम्म। ब्लैंक, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग। नर्वसनेस रहती है, पूरा हॉल शांत रहता है, देर आर नो साउंड्स, नथिंग, एग्जामिनर बस बोलता रहता है। सो बाकी मेंस में टायरिंग तो होता है ना? इट इज टायरिंग, मतलब जो जब तक वर्ड लिमिट अभी ज्यादा थी 2019 तक, so it is very tiring. You do not have time to look up from the paper. You just have to keep writing. आजू बाजू वाले को मत देखो कौन से क्वेश्चन पे है, क्या कर रहा है ना? उस पे मत जाओ। Just focus on your paper and try giving your best. ओके। कुछ भी जाओ, जो मुझे बनता है मैं उसमें 100% अपना सबसे अच्छा रिजल्ट दूंगा। बाकी जैसे बचपन से एग्जाम देते आए हैं, वैसे वैसे ही एग्जाम रहता है, निकल ही जाता है ना? मतलब राइट। एग्जाम का पीरियड तो निकल ही जाता है किसी तरह। शायद हर्षल सर भी लाइव में हैं। आई हैव सीन वन ऑफ हिज कमेंट, सो हेलो सर, इफ यू आर देयर, हाय फ्रॉम आवर साइड। Hi Harshal, are you still there? Even I saw your comment. तब अपन बात कर रहे थे तो आई कुडंट इंटरफेयर, बट शायद वो हैं लाइव पे, हमने उनका एक आध कमेंट देखा था अभी बीच में। तो हेलो सर, हेलो फ्रॉम आवर साइड। He's still there. ही सेड, Hi Harshal, would you like to join in? इट वुड बी अ प्लेजर। Just make him join. Harshal, can you send a request to join? हाँ राइट, वो अच्छा रहेगा। There are so many questions for you. They are going so fast. We can't read them. I'm listening to you. Okay. Okay Harshal, see you next time. ओके मैम, सो जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली लास्ट वाला, वो ये है कि मेंस क्योंकि लगातार होते हैं, राइट? पेपर लगातार होंगे 6 दिन के लिए, तो व्हाट यू यूज टू डू? आप रिवाइज करते थे सब्जेक्ट्स को बाद में, या आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे कि ओके इतना पढ़ लिया, अब इसमें से आ जाएगा सब कुछ, तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आई राइट माई व्यूज। सो वाज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और अप्रोच? देखो, मेंस शुरू होने से पहले ही आपकी पूरे पेपर्स की तैयारी होनी चाहिए, है ना? बिकॉज यू वोंट हैव टाइम टू कवर न्यू टॉपिक्स इन जस्ट हाफ अ डे, ठीक है? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे हिस्ट्री का मतलब फर्स्ट पेपर खत्म हुआ, नेक्स्ट डे हमारा पॉलिटी और ये है, तो आई जस्ट यूज्ड टू टेक लक्ष्मीकांत और एक बार उसको स्किम थ्रू कर लेते थे कि हाँ ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा है। जो नोट्स बनाए हमने पेपर 2 पार्ट 2 के लिए, वो एक बार देख लिए, है ना? अब पेपर 2 खत्म हुआ तो पेपर 3 में जस्ट टेक अप 1 or 2 बुक्स which are the most important and just skim through them. You don't have to read them word by word again. एक बार देख लो, हाँ ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको मतलब इसको बस रिवाइज कर लेते हैं, तो आप बस उसमें बड़ी बड़ी चीजें रिवाइज कर सकते हो। यू डोंट हैव टाइम टू डू अदर थिंग्स, सो बी प्रिपेयर्ड before it starts. Right. People are telling Harshal sir to join because they are saying three people can join. Harshal Okay. is in an inspection, he said. अभी बाहर ही है वो। अच्छा, तो फाइनली हमारी साइड से जितने भी क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो चुके हैं, बट एंड करने के लिए एक छोटा सा गेम है
So would you like to play that? Like 5 or 6 questions for that? I don't know what kind of a game. ओके मैम ये एक रैपिड फायर टाइप का है, जैसे कॉफी विद करण में नहीं होता था रैपिड फायर, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको काफी सेंसेशनल बन जाता है, क्या पूछने वाले हो? आई वोंट आस्क सच सेंसेशनल क्वेश्चन फॉर श्योर। तो छोटे से क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले व्हिच इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? बचपन में शाहरुख खान था, आज की डेट में कोई भी नहीं है। अच्छा, शाहरुख खान की 3 मूवीज। कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान की सबसे फेवरेट मूवी जो आपको अभी तक लगती हो? कभी खुशी कभी गम। ओके, माइन इज चक दे इंडिया। सॉरी टू टेल यू दैट, बट हाँ, चक दे इंडिया याद आता है ऐसे। इसीलिए तो रैपिड फायर है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज आपकी फेवरेट बुक, डू यू लाइक टू रीड? बुक इज 1000 स्प्लेंडेड सन्स, खालिद हुसैनी की है। अच्छा, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट पास टाइम? डू यू लाइक टू कुक और समथिंग लाइक दैट? पेंटिंग आप बहुत अच्छी करते हैं, वी हैव सीन इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो पेंटिंग और कुछ, डांसिंग, सिंगिंग? I like to cook, I like to dance. Okay. गाना गवाएंगे आपसे अभी। Okay, ma'am. This is just a general question. Where do you see yourself in the coming 2-3 years, and what are your like targets? कि ये अभी बन गए तो अब ये तो अचीव करना ही है अगले 3-4 साल में, something like that? See, there are some things which are in my mind. Projects that I intend to undertake in whichever place I'll be going next. Right now, I don't have that kind of resources to implement them, and given the times, but I have some things in mind, and I want to see them coming to action in the coming years. तो मतलब जो सोच के आई थी मैं कि ये करना है, मतलब किस तरह से आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो सोसाइटी को, Harsha sir is saying IAS to become the next IAS. Of course, that plan is on the anvil. But apart from that, as my current posting, I want to justify working at this post also. So I'll take up some projects that I have in my mind, and we'll have another live session in the next 1 to 2 years where I'll tell about those. I want things to come into action. Some of the plans that I have jotted down. Last, ma'am. एक छोटा सा मैसेज जो आप सारे एस्पायरेंट्स को, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल वाचिंग अस राइट नाउ, सो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू टेल देम कि यू कैन डू दिस और नॉट, समथिंग लाइक दैट? See, I always tell the students, clearing one exam is not a parameter for their success or their happiness. तो आप अपनी खुशी को या अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को एक एग्जाम पे अटका के मत रखिए. There are multiple avenues that you can explore in yourself. तो अपनी पूरी एग्जिस्टेंस का मोटिव सिर्फ एक ही चीज रहे ऐसा नहीं होना चाहिए. कंटिन्यू लिविंग लाइफ, हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स. और जब आप खुद और आपके सराउंडिंग में आप पॉजिटिविटी रखते हो तो पॉजिटिव थिंग्स आर बाउंड टू हैपन. सो डोंट अब्सॉर्ब योर ब्रेन विद जस्ट नेगेटिव थॉट्स कि क्या क्या नहीं हो रहा है. आप ये देखो आपके पास क्या क्या है, क्या क्या आगे बढ़ना है, क्या क्या आप कर सकते हो, एंड जस्ट फिल योरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. दैट हेल्प्स इन अ लॉन्ग वे इन जनरल, राइट. और जनरल में सब चीज अच्छी रहती है तो फिर प्रोफेशनली भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही होता है. और अगर बाय चांस अच्छा नहीं भी होता है तो यू आर प्रिपेयर्ड टू फेस द नॉट गुड ऑल्सो. राइट, ओके. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम देख चुके हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं. जब आपका कैमोमाइल टी विद टॉपर्स वाला इंटरव्यू था, आई हैड वॉच्ड दैट ऑल्सो. आपने उसमें भी गाना गाया था. एंड रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे एक IGTV बोलते हैं शायद उसको, वो डाला था जिसमें आपने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया था. इवन दैट सॉन्ग इज मतलब माई फेवरेट ऑल्सो, आजा सनम. तो आप गा दीजिए प्लीज. कोई फरमाइशें हैं स्टूडेंट्स की? आप आजा सनम ही गा सकते हो, मतलब इट्स योर विश. किसी को कुछ सुनना हो तो आई कांट थिंक ऑफ सॉन्ग्स. हाँ, तो हम आपकी फरमाइश भी चला रहे हैं, तो आपको जो भी गाना आपकी फरमाइश के अनुसार संपदा मैम से सुनना है वो भी वो गा सकती हैं.
हम होंगे कामयाब। Oh God. मैं तुम्हारा क्या है ये? आजा सनम। सी आजा सनम। खैरियत। ओके, देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स, एक ही गाना गाना है। ओल्ड सॉन्ग, हर्षल सर इज सेइंग ओल्ड सॉन्ग। संदेश से आते हैं। आई सिंग दैट वन। चलो आजा सनम ही गा देती हूँ। ठीक है। लग जा गले भी आया है। चलो लग जा व्हाट गले। इज योर फेवरेट ओल्ड सॉन्ग? लग जा गले, लग जा गले। नहीं, ओके प्रिया तो से फाइन। नैना आगे। पिया तो से, ओके या फाइन, ठीक है। नहीं, लग जा गले गा रही हूँ, ठीक है। प्रिया तो से आई वोंट बी एबल टू पुल इट ऑफ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से मिली है आज ये घड़ी नसीब से, के देख लीजिए हमको करीब से। आपकी तस्वीर हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। गले से ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, अमेजिंग इट वाज। आई वाज लाइक क्या पूरा गाना गा दो, आई विल बी सिटिंग एंड वाचिंग यू। ओके सो मैम, इट वाज लवली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विथ यू। हमें तो काफी मजा आया। आई होप आपने भी उतना ही एंजॉय किया हो। सो डिड यू एंजॉय? Yes, Rashi, I did enjoy. I hope I think some of the questions are still left unanswered जो Yeah. comments में आ रहे थे. So shall we take them if you have time for them? Let's take them for the next 15 minutes. Okay. है ना? Right, right. Sure, मैम। ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। Let's take them. We need to scroll it ना? Just take them from the top. मतलब जो सबसे पहले आए थे. Okay. अच्छा, हाँ ठीक है मैम। सॉरी, एक सेकेंड। टाइम मैनेजमेंट फॉर मेंस। आप मेंस एग्जाम हॉल के अंदर का टाइम मैनेजमेंट या फिर पढ़ाई से रिलेटेड? टाइम मैनेजमेंट के लिए आई हैव डिस्कस्ड जो मेरे पुराने अनअकैडमी के वीडियोस हैं कि आपको किस क्वेश्चन सेगमेंट को कितना टाइम देना है। 15 मार्क्स वाले मतलब आपके जो 3 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन है, यू हैव टू फिनिश इट इन 10 to 15 मिनट्स। 6 मार्क वाले क्वेश्चन इन 40 मिनट्स एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन इन अनदर 40 to 45 मिनट्स। तो ये आपका एक पार्ट का टाइम डिविजन होना है। रिवीजन स्केड्यूल कैसे बनाएं, क्योंकि एक टाइम पे ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाते। ओके। रिवीजन शेड्यूल आप एक बार पूरा सिलेबस खत्म करिए, है ना, पूरे। उसके बाद फिर उसी साइकिल में रिवीजन भी स्टार्ट करिए। या फिर सपोज आपने एक बार पॉलिटी खत्म कर दिया, फिर आपने हिस्ट्री उठाया, तो जब हिस्ट्री खत्म हो तो आप एक बार फिर से पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए। 2-3 दिन डेडिकेटेड उसको दीजिए। और एक मोटी मोटी चीजें, है ना, जो भी आपने अंडरलाइन किए थे, साइड में नोट्स बनाए थे बुक के, वो सारी चीजें आप फटाफट 2 से 3 दिन में रिवाइज कर लीजिए, इस तरह से। Okay. Ma'am, Akshit is asking, are Tamil Nadu history books sufficient for the mains? यस, दे आर सफिशिएंट। मतलब या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स भी इक्वली अच्छी हैं, है ना। मतलब दोनों में से एक आप पढ़ सकते हो। मैं हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी सजेस्ट करती हूँ, बट तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स आजकल ट्रेंड में आई है कुछ 2-3 सालों से, तो वो भी अच्छी हैं। दे आर नो वेयर लेस देन ओल्ड एनसीईआरटी।
One question is, what is the biggest challenge that you have faced till date after your selection? तो I guess आपने बता दिया कोरोना, right? और कुछ है? See, there are challenges almost every day. ऐसा कोई मतलब not till now. Corona has been, yes, it has been the biggest till now. How does it feel to become a DC? Okay, I would like to. There was one law and order situation wherein Right. one person had self-immolated himself. So when his body came back to his home, there was a lot of law and order situation. Like people had gathered in hundreds, and they were not ready for us to move the body. And I was very new that time, and I was the only person from the administration department here. So I was the one who had to negotiate and convince them that whatever will happen for their benefit and stuff like that. That was, I think, till now that has been my biggest challenge. Really. How to maintain continuity in studies? Next one is this. Continuity के लिए continuity आप देखो वो yes sorry ma'am. continuity के लिए see, if you roll a ball, it will continue rolling only if it has been given a sufficient push, है ना? और friction रहता है ना? We know the laws of motion. So friction is there. So you have to keep rolling the ball every day so that it reaches its destination. आपने पुश तो अपने आप को अच्छा दिया होगा कभी स्टार्टिंग ऐसा में. होता था कि आप बोर हो गए हो पढ़ने में एंड यू आर लाइक कि आज कुछ पढ़ते नहीं है, तो तब आप क्या करते थे? I'm just as human as any other aspirant would be. राइट. बिल्कुल बोर होते हैं, है ना? उसके लिए गाने सुनो, फ्रेंड से बात कुछ प्रॉब्लम get back to work. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. Ma'am, are you there? शायद कुछ ग्लिचेस हो रहे हैं कनेक्शन में. Ma'am, are you there? Can you hear me? I guess कुछ इंटरनेट इश्यू हो रहा है, so we can wait for some time. Okay, ma'am, are you there? हाँ राशि, can you hear? Yeah. हाँ जी. There was some network problem. राइट. ओके. शायद अभी भी कुछ इश्यू हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन. ओके फाइन मैम. तो आई गेस वी आर डन विथ मेनी क्वेश्चंस. सो अब इसको अपन एंड कर सकते हैं. So it was lovely having a conversation with you, and it is such a good opportunity for me. So I am very happy that I have got a chance to interact with you in some way or the other, and hopefully it was good for you as well. So जाते जाते, क्योंकि आपसे गाना गवा चुके हैं हम,
तो आप हाँ। गाना तो गवा नहीं सकते. Okay, Hello. so shall we end this, ma'am? Then, Sure, sure. right. Okay, so this was me, Rashi Rusia, and I hope आप लोगों ने भी ये सेशन उतना ही enjoy किया होगा जितना हमने और मैम ने enjoy किया. And take very good care of yourself. Do love your younger ones, respect your elders, and please do love animals and take a very good care of animals. So this is me and ma'am signing off. And thank you so much, ma'am, once again. Thank you, Rashi. Thank you, MBBHC Club, and thank you everybody who had joined into this. I hope I helped you in some way or the other. You had some takeaways from this session, and take very good care of yourselves. ये एग्जाम वाली लड़ाई और ये सारी लड़ाई से पहले हमारे सामने there is another war going on and another level. Always wear a mask. Do not wear a chin guard. Please take care of that. And if you feel any symptoms are there, please stay away from small children and elderly people. They are at the highest risk. So please take care of yourself and the people around you. Thank you very much and hope all of you do well. Okay, thank you so much, ma'am. So let's end this session now. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Thanks.